back to the new session, new video. In this video, we are going to learn these important words. Here is a text, here is an online news from ZDF heute. The source is ZDF heute. So we'll see this news and learn some new words and how do we use them in a sentence. Okay, wie kann man diese Wörter in einem Satz benutzen oder gebrauchen? Der Gebrauch von neuen Wörtern in einem Satz. Das lernen wir heute in diesem Video. So sehen Sie bitte das Video bis zum Ende und wenn Sie Fragen hätten, schreiben Sie bitte unten in der Kommentare. If you have any question, please write in the comment. And there is also a contact link below. For that you can contact us regarding our target batches A1, A2, B1. And of course B2 target is going to start from December. So now you can see here, what is this? Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele entscheidend. These topics are very, very important when you write B1 exam, B2 examination, Schreiben or expression type. These themes are very, very important. So we'll see some important words. You may note down these words and this might help you in formation of the sentences. Okay, you should know how to frame sentences using these words. There are so many important words and we'll see right from the beginning. The first word as you can see here, Vereinbarkeit. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vereinbarkeit means connectivity of profession and family for viele entscheidend, deciding. It's a deciding factor. Means a person who is working, he needs a balance between professional life and family life. Okay, Verbindung means connectivity. There should be very good connectivity between the personal life, family life and the professional life. Okay, so this is the problem here that Germans are facing. We'll see what is the matter and what is the study. There is a research study has been conducted, okay, regarding this topic, and we'll see the result and we'll see some new words. Basically we are learning new words, we are learning German. We are not here interpreting any news, we are not going to talk about this news. The main objective is to learn new words. So Vereinbarkeit means connectivity, or we can say Zusammenhang. Zusammenhang, okay, Zusammenhang, okay, es gibt einen Zusammenhang. Connectivity, Verbindung, we can also say Verbindung, Vereinbarkeit और Verbindung हम बोलते हैं connectivity, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारे सेम वर्ड्स है, ये आप नोट करोगे. Vereinbarkeit, Verbindung, okay, Verbindung, Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Oder Ausgleich, we can also say Ausgleich means balance, Ausgleich, okay, Ausgleich, okay, और Gleichgewicht halten, ठीक है, बैलेंस करना. ये सारे सेम वर्ड्स है, ये सब आप नोट करोगे. दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सारे सेम वर्ड्स आपको नोट करने. Gleichgewicht halten मीन्स बैलेंस करना. Ein Gleichgewicht halten zwischen dem Beruf und dem Familienleben. या फिर Ausgleich machen, बैलेंस करना, ठीक है. दोनों चीज़ों को बैलेंस करना. आपको फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट है. तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको लाइफ में चलना है. कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पर्सनल लाइफ में. तो इसलिए लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे और डिसीजन तो फिर फैमिली के फेवर में लिया जाएगा. जॉब तो दोबारा मिल जाएगी, जॉब चेंज करके दूसरी जॉब ले सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हो. तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम है. देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे. चलिए पढ़ते हैं. 42% wären bereit dafür den Arbeitgeber zu wechseln. 42% wären bereit, would be ready. मतलब 42% people are ready to change their Arbeitgeber. Arbeitgeber क्या होता है? फिर्मा, कंपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो Arbeitgeber है, जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको वर्क दे रहा है. Arbeitgeber, ठीक है. वर्क गिवर मतलब गिवर, ठीक है, जो आपको प्रोवाइडर, जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है. कौन है वो? कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. तो Arbeitgeber चेंज करने के लिए 42% wären bereit, would be ready. 42% लोग रेडी होंगे अपना Arbeitgeber चेंज करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है. मे बी वर्किंग आवर्स हो सकते हैं. अब यहाँ पे क्या रीजन हो सकते हैं? Arbeitszeiten sind nicht flexibel oder sie stehen unter Stress, sie leiden unter Stress. तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? Arbeitgeber. और जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज, उनको क्या बोलेंगे? Arbeitnehmer, ठीक है. Those who are working employees, Arbeitnehmer. तो Arbeitnehmer और Arbeitgeber ये क्या ऑपोजिट है, ये आपको समझना है, ये ऑपोजिट है.
तो अर्बाइटनेमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मे बी वो अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ के बीच, या बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ओवर टाइम करना पड़ता है। तो ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। जब भी इस तरह का टॉपिक आएगा आपको इस तरह के वर्ड्स सीखने हैं। यू शुड लर्न दीज वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक। दिस इज द वोकैबुलरी, दिस इज द वे यू नीड टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड वर्ड पावर। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, कैसे रिलेट करते हैं। यही चीज़ आपको भी सीखनी है, धीरे धीरे आप सीखोगे, टाइम लगता है इसमें। अभी मुझे भी और काफ़ी कुछ सीखना है, बट डेली मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी नए वर्ड्स याद आते हैं। ये मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ ऑनलाइन, आप भी न्यूज़ चेक कर सकते हो ऑनलाइन। आप सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, यूट्यूब करते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो जर्मन ऑनलाइन न्यूज़, और इस तरह के आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपकी जर्मन इंप्रूव होगी। खाली टेक्स्ट बुक के भरोसे बैठना या एग्जाम बुक के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना लेवल एक लेवल ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज करो यू आर इन क्लास 10th ग्रेड एंड यू आर राइटिंग द एग्जाम ऑफ क्लास 8th, हाउ इजी इट्स फॉर यू, इट्स जस्ट ए केक वॉक। उसी तरह से अपना लेवल एक लेवल आगे बढ़ाओ, अपना एग्जाम को फोकस मत करो, एग्जाम से ऊपर आगे निकलो, एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर पीछे जाके एग्जाम देखोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं, वोकैब देख रहे हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो फिर तो बस इजीली आप सब कुछ कर पाओगे, आप सारे वर्ड समझ लोगे, थीमा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप बोल पाओगे, लिख पाओगे। तो यही मकसद है इस तरह की वीडियोस बनाने का, ताकि आप अपनी वर्ड पावर को इंप्रूव करो। यू लर्न समथिंग न्यू, यू लर्न न्यू वर्ड्स and you learn how to use them in a sentence, how to implement these words in a sentence. Implementation is very very important. ठीक है, Arbeitnehmer. So what are the reasons we can collect here? Like maybe Überstunden, उन्हें Überstunden means overtime करना पड़ता है, Überstunden machen हम बोलते हैं, to do overtime. और Arbeitszeit sind nicht flexibel, ये भी रीज़न हो सकता है कि जो वर्क टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ओके, unflexible. तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे बाकी व्हाट आर अदर रीजंस व्हाई Arbeitnehmer, ओके, व्हाई एम्प्लॉयज वांट टू चेंज देयर Arbeitgeber और कंपनी, व्हाई आर दे चेंजिंग देयर कंपनीज, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। चलिए देखते हैं हम आगे। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट है, ये ZDF Heute की, ठीक है, ZDF का ये आर्टिकल है। फिर एरवर्ब्सटिटी की एल्टर्न, ये नोट करोगे आप, इंपॉर्टेंट वर्ड, एरवर्ब्सटिटी की एल्टर्न मीन्स वर्किंग पेरेंट्स, उन फ्लेगेंडे, फ्लेगेंडे मीन्स केयरिंग, ऐसे पेरेंट्स जो केयरिंग है। फ्लेगन वर्ब क्या है यहाँ पे, फ्लेगन, और फ्लेगेंडे मीन्स जो केयर करते हैं, फ्लेगेंडे हैं। डी Vereinbarkeit von Beruf und Familie von großer Bedeutung, ये देखोगे von großer Bedeutung, etwas ist von großer Bedeutung, समथिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, समथिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स के लिए, जो वर्किंग पेरेंट्स है और जो फ्लेगेंडे है, मतलब जो केयर कर रहे हैं, जो केयर टेकर है, घर पे आप अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने इन लॉज की आप केयर करते हो और साथ में वर्क भी करते हो। तो आप एक पेरेंट भी हो और आप मदर भी हो, आप एक वाइफ भी हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप फादर भी हो, तो इट्स फॉर पेरेंट्स बोथ, मदर फादर। तो एरवर्ब्सटिटी की एल्टर्न, ये नोट करोगे, एरवर्ब्सटिटी की एल्टर्न मीन्स वर्किंग पेरेंट्स। लाइक आप सिंपल सेंटेंस कैसे बोलोगे, इट मीन एरवर्ब्सटिटिश और meine Eltern sind erwerbstätig oder berufstätig। हम बोलते हैं ना berufstätig, sind sie berufstätig, are you working, sind sie erwerbstätig। तो हम berufstätig वर्ड यूज करेंगे अगर आपको बोलना है कि आर यू वर्किंग, sind sie berufstätig। देखो कैसे लिखेंगे, berufstätig, जैसे बोलते हैं ich bin berufstätig मीन्स आई एम वर्किंग, आई एम प्रोफेशनल, ओके, ich mache einen Beruf। तो उसी तरह से एरवर्ब्सटिटी के एल्टर्न, हम वर्किंग पेरेंट्स, ओके। 42% wären bereit, 42% would be ready। अब देखो 42%, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल में, वेरन, क्योंकि 42 है, प्लूरल है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे प्लूरल है, 42 नंबर है, एक से ज़्यादा प्लूरल, तो वेरन, सिंगुलर नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है।
42% would be ready. So वेरन, वेरे नहीं वेरन प्लूरल, बिकॉज 42%, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी है राइटिंग के टाइम, स्पीकिंग के टाइम पे। बाय मांगल्डर रिक्जिस्ट नाम देन आर्बाइटगेबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, मांगल्डर रिक्जिस्ट नाम देन आर्बाइटगेबर सु वैक्सल। सो व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? शॉर्टेज, स्केर्सिटी। मांगल मीन्स शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज होना। जैसे एस मांगल्ड आन लेयर क्रेफ्टे, एस मांगल्ड आन आर्बाइट नेमर, एस मांगल्ड आन आर अंगस्टेल्टे। तो एस मांगल्ड स्ट्रक्चर क्या बोलता है? एस मांगल्ड मीन्स किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होना, एस मांगल्ड आन, फिर यहाँ पे लिखोगे किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है। ओके, देयर इज स्केर्सिटी, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, फिर यहाँ पे आन डाटे हुए। तो यहाँ पे इसको वर्ब को यहाँ पे क्या किया? पार्टिसिप आइंस एज ए एडजेक्टिव बनाया। ये B2 लेवल का टॉपिक है, दिस इज B2 लेवल। पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव, ये आपको सीखना है। दिस इज B2 लेवल, B2 मांगल्डन, पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव। बाय मांगल्डर रिक्जिस्ट नाम देन आर्बाइटगेबर। ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ रिक्जिस्ट नाम देन आर्बाइटगेबर मीन्स कंसिडरेशन, जो आर्बाइटगेबर वो कंसिडर नहीं करते हैं, वहाँ पे लैक ऑफ कंसिडरेशन है, लैक ऑफ कंसिडरेशन, लैक ऑफ consideration means they don't think the problem of the employee, they don't consider the problem of the employee. So by Mangalder requisite नाम, requisite means consideration, consideration करना। again requisite नाम, in requisite नेमन बोलते हैं ना, Sie müssen das Problem in requisite nehmen, you should take into consideration, ये स्ट्रक्चर है। etwas in requisite nehmen, देखो कैसे लिखते हैं, etwas in requisite nehmen, in requisite nehmen, ये सब आपने पढ़ा हो, ये B1 में रिक्जिस्ट नेमन। तो इन रिक्जिस्ट नेमन को हमने क्या बनाया? रिक्जिस्ट नाम, ठीक है, नेमन को क्या कर दिया? नाम, यहाँ पे नाम। तो ये आपको ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर से बाय मांगल्डर रिक्जिस्ट नाम, ठीक है, विद द शॉर्टेज ऑफ कंसिडरेबल, ओके, देन आर्बाइटगेबर सु वैक्सल। सो बेराइट रेडी, क्यों? वाई डू दे वॉन्ट टू चेंज? Because there is a shortage of consideration. The employee, the company is not considering their problem of the employees. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft Prognos, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hatte. Repräsentativ befragt wurden dafür mehr als 2500 Beschäftigte mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen. Angehörigen again, Angehörigen means belong, means जो बिलोंगिंग्स हो, जैसे घर पे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे क्या है? अनगेह्योरिग, अनगेह्योरिग। लाइक हम बोलते हैं ना एल्टन, अनगेह्योरिग कौन होंगे? ऑल दोज पीपल होम यू टेक केयर, जो भी लोग घर पे आप केयर करते हो, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, किंडर है, वो सब क्या हो गया यहाँ पे? अनगेह्योरिग। एल्टन भी हो सकते हैं, ये ग्रोस एल्टन भी हो सकते हैं, और किंडर भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल अनगेह्योरिग, अनगेह्योरिग, फ्लेगेंटन अनगेह्योरिग। लाइक आप बोल सकते हो इश मुस दी अनगेह्योरिग आक्टन, इश मुस और इश क्यूम्र मिश दी एल्टन, इश क्यूम्र मिश माइने ग्रोस एल्टन, और इश क्यूम्र मिश माइने अनगेह्योरिग, अनगेह्योरिग प्लूरल, ठीक है। आई लुक आफ्टर माई फैमिली मेम्बर्स, द पीपल हु बिलोंग्स टू मी, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चिल्ड्रन, दे बिलोंग्स टू मी, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो आई हैव टू लुक आफ्टर देम, अनगेह्योरिग। लिखोगे, नोट करोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, फिर एटवा 80% der Befragten, देखो 80% der Befragten में 80% ऑफ द इंटरव्यूड, जिनसे इंटरव्यू लिया गया, जिनसे पूछा गया, जिनका सर्वे किया गया, 80% ऑफ द पीपल हु वर आस्क्ड। बेफ्रैक्टन मीन्स जिनसे पूछा गया, पीपल हु वर आस्क्ड, जिनसे पूछा गया या जिनका इंटरव्यू लिया गया, 80% ऑफ, अराउंड 80%, एटवा मीन्स अराउंड, अप्रोक्स
जब नंबर को हम अप्रोक्स में तो एटवा लिखते हैं, एटवास नहीं, एटवा, एटवा नंबर के लिए एटवा आता है। लाइक es gibt etwa 50 Studenten in meinem Unterricht. Das Buch hat etwa 100 Seiten. Etwa. और etwas, ich möchte etwas zum Essen bringen. Ich möchte etwas zum Trinken mitbringen. ठीक है, तो समथिंग विच इज काउंटेबल, वी से etwa, काउंटेबल, ठीक है, समथिंग विच इज काउंटेबल, जिसको आप काउंटेबल कर सकते हो, काउंटेबल नंबर्स के लिए हम etwa यूज करेंगे। Demnach mindestens einer der folgenden Aspekte zu den wichtigsten Merkmalen eines Arbeitgebers. Merkmalen means features, characteristics, features of the employee, features of the company. Merkmale, features, हम Merkmale यूज करते हैं। Merkmale einer Geschichte, Merkmale eines Gedichts, किसी पोएम का, किसी स्टोरी के फीचर्स, स्पेशल फीचर्स किसी पोएम के, किसी स्टोरीज के, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये वर्ड यूज होता है Merkmale, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी कैरेक्टर के फीचर्स। कोई पिक्चर है, पिक्चर में कोई हीरो है, हेल्ड, ओके, और एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, और जो लीड रोल में प्रोटैगनिस्ट है, और जो एक्टर्स हैं, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। जो फिगुरन है, बोलते हैं फिगुरन, हाँ, स्टोरीज में फिगुरन, एस गिव ड्राई फिगुरन, ड्राई कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के कुछ आइगनशाफ्टन होती है, ठीक है, आइगनशाफ्टन। और मेर्कमाल, दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं हम, आइगनशाफ्टन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आइगनशाफ्टन, ये भी वर्ड आप नोट करोगे, आइगनशाफ्टन। तो हम रीडिंग भी कर रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देख रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है अदर वीडियो से। और देखिए आगे क्या लिखा है, Flexibilität für geplante oder so spontane Auszeiten und Arbeitszeitunterbrechungen sowie keine Benachteiligung der Karriere। तो रीज़न यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, Flexibilität für geplante oder spontane Auszeiten, Auszeiten मीन्स ब्रेक, पाउज, ब्रेक को बोलते हैं आउटसाइड, पाउज einlegen, हम बोलते हैं ना, ich möchte eine Pause einlegen, और ich möchte eine आउटसाइड माखन, मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं पाउज लेना चाहता हूँ, आउटसाइड। गेप्लांट मीन्स प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड, ये क्या, पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव, पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव, गेप्लांट, द वर्ब इज प्लानन। प्लान क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्लान एंड स्पॉन्टेनियस ब्रेक। उन Arbeitszeit Unterbrechungen, वर्क टाइमिंग इंटरप्शन, Unterbrechungen means interruption, sowie keine Benachteiligung oder Karriere, there is no continuation of the career। तो इसमें कोई करियर नहीं है, उनको कोई आगे फ्यूचर करियर कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है। स्पॉन्टेनियस कोई ब्रेक ले लेते हैं, या कोई प्लान्ड कोई ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ब्रेक लिया 3 दिन का, 4 दिन का, कोई वीकली ब्रेक लिया, अर्जेंट कोई उनको नीड है लीव लेने की, लीव लिया आउटसाइड, तो it cannot be considered। this is the problem of Arbeitnehmer। देखो, sehr wichtig ist dabei für 60% Flexibilität für Auszeiten und Arbeitsunterbrechungen। sehr wichtig ist, very important is dabei für 60% Flexibilität für Auszeiten, मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं दे वॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द आउटसाइडर, मीन्स वेन एवर दे वॉन्ट दे गेट इजिली लीव, उनकी लीव इजिली सैंक्शन हो जाए। वेन वी वर्क इन ए कंपनी वी नीड अ लीव फॉर 2-3 days ड्यू टू मेडिकल रीजन और एनी अदर अर्जेंट वर्क, इट शुड बी सैंक्शन, उसे सैंक्शन करवानी पड़ती है हमें बॉस से, तो वो उसमें प्रॉब्लम ना है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन सैंक्शन ऑफ द लीव आउटसाइड। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आउटसाइडर, बहुत अच्छा वर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ईजिली आपकी लीव सैंक्शन हो जाए, यू डोंट नीड टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस। If you are working for the company, there is a duty of the company or Arbeitgeber or company or your boss that he or she should look after your need, your requirement, your urgency, that yes, my employee is in urgent need, he is in emergency, he is asking for leave, so I should grant him without any hindrance, without any obstacle. This is my duty as a boss, this is my duty as an Unternehmer, as a firma. But employees are not satisfied, sie sind nicht zufrieden, they don't get leave, they don't get outside flexibility für Auszeiten, this is the problem।
और क्या रीज़न है? Betriebliche Kinderbetreuung und Ferienprogramme sind hingegen für weniger als 20% von Bedeutung. Von Bedeutung means important. Something is important, something is von Bedeutung. Something is important, sehr wichtig. ये सब वर्ड्स आपको सीखने, ये सब वर्ड्स आपको यूज करने. Das ist von Bedeutung. Das ist für mich eine große Bedeutung. Something is for me. Like outside ist für mich von großer Bedeutung. Outside oder Flexibilität spielt für mich eine wichtige Rolle. Flexibilität ist für mich von großer Bedeutung. Flexibility मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत मतलब है. इट्स मीन अ लॉट. समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू समवन. तो फॉन ग्रोसर बेडोइटुंग ये आपको सीखना है. ठीक है, समथिंग इज फॉर ग्रोसर बेडोइटुंग, फॉन ग्रोसर बेडोइटुंग, ये सब वर्ड्स आपको सीखने हैं. काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो. बाकी काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको और आगे तक पढ़ सकते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, सारा हम करेंगे नहीं, बाकी सारे वर्ड जो हमने पढ़ने थे पढ़ लिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और यू मे फील बोर. तो ये हमारी आज की क्लास थी, हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे. आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव. लाइक दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड join my telegram channel, link is given below. And joining our target batches A1 to B1, you will find below contact link. Click and direct contact with us. Thank you so much. Keep learning, keep watching German class. Auf Wiedersehen. Cheers. Bis bald.